Good morning to you all. Good morning, sir. Very good morning. You all are from standard 5th. Yes, sir. So today we have to start a new chapter, that is lesson 1, named Mother. But before starting that, I would ask a few questions from you all. You must reply together in a positive way. Say, what date is today? 6th of May 2020. Very good. Which day is today? Wednesday. Very good. Which subject we are going to study now? English. Very good. And which topics is there Poem belonging to lesson? 1. Very good, very good. Now you are following. Okay, right. So you first of all, we will learn how to recite the prescribed poem, Mother. And for this we need to put fingers on each word. Wherever I apply on blackboard, you watch and just put your finger on the book and recite accordingly, right? Yes, sir. जहाँ पर हम इस पेंसिल को रखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, जिस वर्ड पे उस वर्ड पे आप अपने बुक में उंगली लगाएंगे, उसी वर्ड पे आपकी उंगली होनी चाहिए ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन सीख सकें और बोल सकें और सीख सकें. ठीक है? Yes, sir. तो आइए हम शुरू करते हैं. You all are in Hindi speaking, guys. Yes, sir. So I am going to translate it in Hindi. So first of all, I will instruct you in English and thereafter I will translate it into Hindi so that you can grasp and understand accordingly. Right, let's start. Hundreds of stars Hundreds of stars in the pretty sky. in the pretty sky. Hundreds of sails Hundreds of sails on the shore together. on the shore together. इसका हिंदी अर्थ जानेंगे. सुंदर आकाश में सैकड़ों तारे हैं और समुद्र की लहरों में अनेकानेक यानी सैकड़ों सेल्स हैं, जिसे सितुआ कहते हैं हिंदी में. समुद्र की लहरों के साथ समुद्र के किनारे हमें क्या मिलते हैं? अनेकानेक सितुआ मिलते हैं. तो कवि का कहना है कि सुंदर आकाश में सैकड़ों तारे हैं और सुंदर समुद्र तट पे सैकड़ों सितुए हैं. इस पंक्ति से कवि इस भाव को दर्शाते हैं. अगली पंक्ति को हम पुनः इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे. Hundreds of birds Hundreds of birds that go singing by. that go singing by. Hundreds of lambs Hundreds of lambs in the sunny weather. in the sunny weather. कवि कहते हैं कि सैकड़ों पक्षियां चहचहा रही हैं, मनमोहक गीत गा रही हैं और सैकड़ों भेड़िया के बच्चे जिसे लैम्स कहते हैं वो इस प्रकाश में मौसम में, इस धूप के मौसम में क्या कर रहे हैं? आकर्षण बढ़ा रही हैं. कवि का इस पर्यावरण का आकर्षण बढ़ा रही हैं कवि के दृष्टि में. तो इसको हम फिर दोहराएंगे. Hundreds of birds Hundreds of birds that go singing by. that go singing by. Hundreds of lambs Hundreds of lambs in the sunny weather. in the sunny weather. कवि कहते हैं कि सैकड़ों पक्षियां मनमोहक गीत गा रही हैं और सैकड़ों भेड़िए के बच्चे इस धूप के मौसम में आकर्षण बढ़ा रहे हैं. कैसे? आगे देखते हैं. Hundreds of dewdrops Hundreds of dewdrops to greet the dawn. to greet the dawn. Hundreds of bees Hundreds of bees in the purple clover. in the purple clover. Hundreds of dewdrops मतलब सैकड़ों तुषार यानी सैकड़ों ओश की बूंदे क्या कर रही हैं? आपस में मिलकर भोर की शोभा बढ़ा रही हैं. यानी अरुणोदय जो होता है जिस समय सूर्योदय होता है
उस समय क्या होती हैं? सैकड़ों ओश की बूंदे, जिसे तुषार भी कह सकते हैं, वो आपस में मिलकर एक दूसरे का स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं, एक दूसरे का सम्मान करती हैं। कवि को लग रहा है कि ओस की बूंदे आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। Hundreds of bees Hundreds of bees in the purple clover, in the purple clover. और बहुत सारी जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों की पंखुड़ियों में हरी पत्तियों की आकर्षक पत्तियों के बीच छिपकर मौजूद हैं और वो आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। तो hundreds of bees Hundreds of bees in the purple clover, in the purple clover. तो ये जो आकर्षक क्लोवर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तियां आकर्षक होती हैं पर्पल कलर की, और उसमें मधुमक्खियां आनंद लेती हैं, पराग के लिए जाती हैं। नेक्स्ट, hundreds of butterflies Hundreds of butterflies on the lawn, on the lawn, but only one mother, but only one mother. whole world over, The whole world over, the whole world over, the whole world over. सैकड़ों तितलियां लॉन में यानी घास के मैदान में क्या होती हैं? आकर्षण बढ़ाती हैं, देखने को मिलती हैं। सैकड़ों तितलियां घास के मैदान में हमें देखने को मिलती हैं। और इतने सब के बावजूद हम एक बात गौर करते हैं कवि के दृष्टि में, क्या? कि पूरे विश्व में मां लेकिन एक ही है, मां लेकिन एक ही है, मां लेकिन एक ही है, जो सब के लिए एक ही है। हमारे कवि के दृष्टि में पूरे विश्व में आकाश की शोभा बढ़ाने के लिए सैकड़ों तारे हैं, समुद्र की शोभा बढ़ाने के लिए सैकड़ों सितुए हैं, और पेड़ पौधों पे मौजूद पर्यावरण की शोभा बढ़ाने के लिए अनेकानेक पक्षियां हैं। खेत खलिहानों में इस मौसम में अनेकानेक भेड़िए चल रहे हैं। और प्रातः काल में हम क्या देखते हैं कि सैकड़ों ओस की बूंदे आपस में गले मिल रही हैं, आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं और इस पर्यावरण की शोभा बढ़ा रही हैं। अनेकानेक मधुमक्खियां पौधों के बीच मंडरा रही हैं, जो इस पर्यावरण की आकर्षण बढ़ा रही हैं। और इस बीच हमें एक बात गौर करने की है कि इस पूरे दुनिया में, पूरे संसार में मां लेकिन एक ही है। सबके पास मां लेकिन एक ही है, मां लेकिन एक ही है। इसलिए हमें मां का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसके साथ